આપણે સાંભળવું પણ છે, તો જે સાંભળવું હોય એ જ સાંભળતા હોઈએ છીએ. કદી આવું ધ્યાન ગયું છે આપણું? સપોઝ અહીંથી હું વાત કરું છું, પણ તમારી અંદર જે પહેલાંથી પ્રી કન્ડિશન હશે ને એટલું જ તમે સાંભળશો, બાકીનું તમને જશે જ નહીં. અને જો હું વિધાઉટ કન્ડિશન બેસીસ, ઓપન માઇન્ડેડ બેસું કહેવાય ને, ઓપન માઇન્ડેડ બેસીસ તો દરેક વસ્તુ સમજવા માટે તૈયાર રહીશ. કારણ કે હમણાં નયનાબેને મને એક વાત કરી હતી, કશું જીવન વિદ્યામાં બધા ટીચર્સને એ હથોડા નથી પડતા. એ વાસ્તવિકતા એવી છે, મને કઈ વસ્તુ ઇરિટેટ કરે છે જે હું નથી અને ખરેખર છું છતાં પણ હું નથી, અને એ જ્યારે મારા સામે આવે છે ત્યારે હું હલી જાઉં છું. મેં જીવન ભ્રમ, આખા જીવનમાં એક ભ્રમ તૈયાર કર્યો અને ભ્રમ સામે કોઈએ ટકોરો માર્યો કે નહીં આવું ન હોય. એટલે મારી 20 વર્ષ 25 વર્ષની જે મારી સમજણ હતી ને એના એકદમ રાતોરાત ખતમ કરવાની વાત આવે એટલે મારાથી સહન નથી થતું. જેવી રીતે હમણાં આપણે ટી શર્ટ્સ ચેન્જ કર્યા ત્યારે શું થયું, તો એનો પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ છે તમારી પાસે. સેમ કન્ડિશન અહીંયા ડેવલપ થાય છે. તો મારું સમજવા માટે તૈયાર રહેવું એ પહેલી પ્રાયોરિટી હોય ને. એટલે આપણે ભલે ઘણા જબરજસ્તીથી બેસતા હશે, પણ એ જબરજસ્તી જ્યારે એમની લાઈફમાં એવા ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઉપર એટલી હેલ્પફુલ થશે ત્યારે તમને રિયલાઇઝ થશે કે યાર મારી પાસે એટલી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે કે જેના કારણે હું પ્રોપર ડિસિઝન લઈ શકું છું. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ વિથ કમ્પલ્ઝન આવતી હોય છે, પણ આ જે એક્ટિવિટી કરીએ છીએ એમાં મારો કોઈ આશય તમને સુધારવાનો નથી. હું સ્પષ્ટ કહું છું. હું એવું નથી માનતો કે તમે બધા બગડેલા છો, હા, એવું માનતા નહીં કે સાહેબ બળજબરીથી બેસાડે છે. બસ હું મારી ખુશી વ્યક્ત કરું છું. જો મારામાં ખુશી હશે તો તમે પકડી લેશો, નહીં તો નહીં પકડાય. જો હું આર્ટિફિશિયલ હોઈશ તો પણ પકડાઈ જઈશ, હું જો સાચો હોઈશ તો એ પકડાઈશ. કારણ કે હું એવું માનું છું કે જિસકે પાસ જો હોતા હૈ વો બાંટેગા હી. ઇટ્સ રિયાલિટી. એમાં મારું નથી ચાલતું. એમાં હું ગમે તેટલો શાણો થઈ જાઉં ને તો મારું નથી ચાલતું. હું ગમે તેટલા સ્માર્ટનેસથી સારા સારા શબ્દોથી તમને વાતો કરીશ તો એ નહીં ચાલે. રિયાલિટી બહાર આવી જ જાય. એટલે વ્યક્તિની વ્યાખ્યા એવી છે કે જે વ્યક્ત થાય છે એ વ્યક્તિ છે. વ્યક્તિ મતલબ જે વ્યક્ત થાય છે, અને દરેક ઇકાઈ વ્યક્ત થતી જ હોય છે. તો હું મારું વ્યક્તવ્ય હું ગમે તેટલું છુપાવીશ તો એ છુપાવવાનું નથી. જો ઓરિજિનલ હશે તો એ ચાલશે. તમને સુધારવાની ક્રિયા હશે તો હું થાકી જવાનો છું. મારી સુધારવાની ક્રિયા હશે તો નિરંતર ચાલશે, અને હું તમને જોડતો જઈશ. તમને નહીં ગમે તો તમને સાથે લેતો જઈશ. એ તો એવું જ હોય ને, બાળકને ક્યાં ભણવું ગમે છે, બાળકને ક્યાં હોમવર્ક કરવું ગમે છે? આપણે કરાવીએ છીએ ને, નથી કરાવતા? એક નહીં આજે મને મૂડ નથી તો તમે એમ કહો છો કે કંઈ વાંધો નહીં, કરાવવું પડે તો થાય છે. આવી પ્રોસેસ થાય છે. તો એમાં એને ફોર્સફુલી નહીં, પ્રેમપૂર્વક થશે, પણ ક્યાંક એવું ફીલ થાય તો માફ કરજો. બે આપણે પોઈન્ટ લીધા હતા પહેલા, હો ક્યાં રહા है और चाहता क्या हो. अब हो क्या रहा है उसमें हमने देखा कि भाई मेरी मूलभूत चाहत क्या है, तो उसको हम पकड़े वापस पकड़ सकते हैं कि मैं सुख के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो पकड़ सकते हैं हम. मेरा प्रयत्न केवल और केवल सुख प्राप्ति के लिए ही है. चलो उसको पकड़ते, कोई भी टॉपिक लेके पकड़ते हैं, जैसे ए बोर्ड को लेके पकड़ते, कहीं से भी जाओगे वहां जाके अटकोगे. देखो मोबाइल से स्टार्ट करते चलो. मैं किसी एक को क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर देते जाना, ठीक है? प्रणव सर, मोबाइल क्यों है? क्यों है? ओके, बातें क्यों करनी है? बातें अपनी कुछ भी पर्सनल बातें हो, मतलब उसे संबंध बनाने के लिए. संबंध क्यों बनाना है? दोनों एक दूसरे को समझ सके. समझना क्यों है?
सुख से रह सके। ओके, दूसरा कोई टॉपिक ले लो, कोई भी चीज से स्टार्ट करो आप। देखो वहां जाके अटकोगे 101%। बताओ हीना मैम, एयरपोर्ट क्यों जाना है? ट्रैवलिंग करने के लिए। चलो, माइक क्यों है? माइक हमारी बातों को क्लियरली सामने वाला सुन सके, तो सुनाना क्यों है? ताकि वो समझ सके, समझना क्यों है? ताकि एक अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो। कम्युनिकेशन क्यों करना है? समाज में रहने के लिए, समाज में क्यों रहना है? जिंदा रहने के लिए सामाजिक होना, सोशल होना बहुत ज़रूरी है। जिंदा क्यों रहना है? जीवन है, जीना है। जीना क्यों है? मुझे तो जीना है। क्यों जीना है? मैं तो Because जीना है I- तो सबको जीना Because है। I'm happy. Because I'm happy. I'm I very want happy. to be happy. And I want to be happy. हाँ, and happy I am हूँ, happy. that is it's okay. लेकिन जीने वाली बात करते, जीना है तो it is future. It is तो future. क्यों जीना है? I want to be happy. हैप्पी, Yes. सुखी होने के लिए। गॉट इट? ओके, और कोई लेना है? कहीं से भी स्टार्ट करना है? आप बोलो, वहां से स्टार्ट करें। आप बोलो, वहां से स्टार्ट करें। ये बोर्ड क्यों है? हाँ बताओ। સર હમણાં એક રિતિક રોશનનો ઇન્ટરવ્યૂ હતો, તો એમણે એવું કીધું કે હું જ્યારે સ્ટ્રગલિંગ પિરિયડમાં હતો સ્ટાર્ટિંગમાં, તો પછી બધા એવું કહેતા કે તું એકવાર સક્સેસ થઈ જશે ને પછી તને એકદમ હેપીનેસ ફીલ થઈ જશે. તો જ્યારે ભાઈ રિતિક રોશન કહે કે હું સક્સેસફુલ થઈ ગયો ને હું હેપીનેસ શોધતો હતો કે ક્યાં હેપીનેસ ક્યાં હે, મળતી જ નથી, કે હું સક્સેસ છું તો બી હેપીનેસ મળતી નહીં. પછી એને સમજાયું કે હેપીનેસ એ કોઈ વસ્તુ કોઈ થિંગ્સ નથી, એક આદત છે, એ ખુદના અંદર લાવવી પડશે હેપીનેસ માટે. કોઈ તમને બીજું હેપી નહીં કરી શકે. તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં હશો તો એ ખુદથી જ તમે હેપી થઈ શકશો, એ તમારી આદત બનાવવી પડશે, ત્યારે જ તમે થશો. तो देखो इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान गया, आदत बनानी पड़ेगी, मतलब उसमें मुझे कुछ करना है। जब जब कुछ करना है मैं फेल, वो हो रहा है तो आई एम सक्सेस। देखो कई बार हम ऐसा था, ऐसी बात हो गई जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने स्वीकृति दे दी, तो स्वीकृति इज इक्वल टू सुख। तो मैंने गलत तरीके से, जैसे किसी का कोई बंदा है, कोई डॉन है और किसी का खून करके उसको स्वीकृति देता है तो उसको सुख लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसको जो करना था वो उसने किया और किया तो उसको सुख मिला, तो वो सही है क्या? तो वो टेम्पररी हो जाएगा उसका, वो परमानेंट में नहीं रहेगा। वो चीज जो उसने नेचर के खिलाफ, नियम के विरुद्ध की है, तो वो उसको जीने नहीं देगा, वो घटना उसके दिमाग में से कभी नहीं जाएगी, उसको अंदर से ऐसा ही फील होगा कि मैंने गलती किया है। वो हाँ, उसका टाइम लग सकता है, उसको आज समझ में आए, कल समझ में आए, आफ्टर सम टाइम्स किसी इंसिडेंट पे समझ में आए, लेकिन उसके दिमाग में, उसके अंदर वो बात रहेगी जो हम गलत करते हैं। तो बोलते हैं ना, सही में एक, गलती में हम अनेक है। देखो हमको सबको सही करना है ना, तो एक ही डायरेक्शन है हमारे सबकी। हमें मानव बनना है तो वी आर यूनिक, हम एक ही है। लेकिन हमें मानव नहीं बनना है और सिर्फ इसके बेसिस पे मुझे सोचना है तो वी आर डिफरेंट। लेकिन एपी क्यों है, मुझे वो देखना है। जैसे अभी जो हैप्पीनेस का एक करिकुलम हम रीड कर रहे थे, बहुत बढ़िया ध्यान गया, तो उसमें सुख को भी 3 कैटेगरी में डाला हुआ है। सुख को 3 कैटेगरी में है। जैसे सुख है तो सुख क्यों है, वो कैसी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सुख चाहिए? तो सुख की कैटेगरी भी हमने ऐसे रखी है, एक जो है वो थ्रू सेंसिस, थ्रू सेंसिस, ओके, थ्रू सेंसिस जो हैप्पीनेस मिलता है वो कितने टाइम की, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहती है?
पक्का टेम्पररी। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि इंद्रिय वाला कुछ ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, वो टेम्पररी रहेगा। जैसे मुझे कुछ सूंघना है तो फुल सूंघ सूंघ के, आप देखो जब रोज का मैंने कभी सुबह जाता था तो एक वाइट कलर का फ्लावर आता है, उसका रात रानी है व्हाट आई डोंट नो, मुझे उसका नहीं, मोगरा नहीं था वो, है हमारी सोसाइटी में। तो उसको लेके जब मैं स्मेल करता था ना तो पहले बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहले एक दो बार अच्छी स्मेल आ जाती थी, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी तो अच्छा लगता। फिर उस चीज को हम बार बार सूंघते हैं ना, थोड़ी देर बाद स्मेल भी चली जाती है। तो रियल में चली जाती है कि फिर मेरे अंदर वो ऐसा होता है कि नहीं अब लिमिट आ गई उसकी, हाँ सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। नहीं तो नॉर्मली फूल तो वही है, वो तो अपना नेचर तो छोड़ने वाला नहीं है, उसमें तो स्मेल है। लेकिन मेरे में जो सूंघते सूंघते, जैसे गुलाब का भी फूल सूंघो आप, 2 बार सूंघोगे तो कोई स्मेल आएगी, फिर 3-4 बार फिर लगेगा कि यार ठीक है। हाँ रूह अफ़ज़ा लगा 2-3 दिन हम ये एक ही चीज पिलाते हो और अच्छा नहीं लगता है, बात यही हो जाता है। मतलब वो पहले इट्स लाइक टेम्पोररी। અને उसको એને આપણી રૂટીન લાઈફમાં લાવીએ તેવી વાત આવે। જે રીતે વચ્ચે હું ટામેટાનું શાક ખૂબ ખાતો હતો, સિઝન હતી ત્યારે। એટલે કેવી રીતે ખાવું ખબર છે? થાળી ભરીને લઈ જ લો, એમ થાળી ભરીને કમ્પ્લીટ સબ્જી લઈ લેવાની, પછી એક જ રોટી લેવાની, પણ મેક્ઝિમમ ટામેટું જ ખાવાનું, બરાબર? ઓકે, હવે પેલા નાના ટાબરિયા ખરા એને જોઈ ગયા, હા આટલું બધું ખાવ છો તમે? ભાઈ હું તો રોટી એક જ ખાઉં છું, હું તો સબ્જી વધારે ખાઉં છું, પણ એમના માટે કારણ કે એ તો આટલું જ ખાય છે અને એમને તો થાળી ભરીને જોયું એટલે એમના મનમાં હા આટલું બધું ડેડી ખાય છે। એટલે પછી આપણે એને કંઈક નજર લાગી ગઈ એટલે બીજા દિવસથી ટામેટું ના ભાવે। આવું બધું આપણે ચાલે છે એમ, પણ મને તો એવું ફીલ ના થયું નજર લાગે એવું। એટલે કહીએ ને કે કોઈને જોતા ખાતો નહીં, હા ખાઈશ તો નજર લાગશે। ભાઈ કોઈને જોતા ખાજે, પણ જે છે એમાંથી થોડું એને બી આપજે ને તું બી ખાજે, તો એને ટેસ્ટ આવશે તો એને નજર નહીં લાગે। જો લાગતી જશે તો એને બી થોડું આપી દેજે, સોલ્યુશન છે આપણી પાસે। નહીં મારે એકલાને ખાવું છે તો પછી સોલ્યુશન નથી, તો પછી ક્યાંક ખૂણામાં બેસીને ખાવું પડશે। तो देखो इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो हमें हमारे नॉलेज में ये तो आ गया है कि भी इट इज मोमेंटरी, वो ज्यादा नहीं टिकेगा। और हम कहाँ अटके हुए वो भी देख लो आप, अभी भी राइट नाउ कुछ भी कर रहे हैं तो सेंटर में अभी क्या कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है इसमें, क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? कभी ऑब्जर्व करते, कभी ध्यान देते, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत है, हम इसको भोग सकते हैं, डजंट मैटर। ऐसे नहीं है कि ये छोड़ दो, इंद्रिया छोड़ दो, ऐसी बात ही नहीं है। आदर्शवाद में ऐसा था कुछ कि नहीं भाई ये संसार से अलग हो जाओ, टेस्ट बेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे होता ना जैनिज्म में, वो सब में कुछ मैंने सुना हुआ है कि भाई सारे जितना भी कुछ खाना देते तो सबको इकट्ठा करो, टेस्टलेस बना लो फिर खाओ, है ना? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस में है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ऐसा बताया जाता है कि भाई टेस्ट है ना, वो टेस्ट निकल जाना, तभी आपका ध्यान जाएगा ओरिजिनल सुख पे। और हमारा यहाँ जीवन विद्या में कहा गया कि कुछ भी मिस नहीं करना है, सबको एंजॉय करो। सब कुछ दिया हुआ है तो उसके पीछे कोई पर्पस है, उस पर्पस को फाइंड आउट करो आप। नेचर ने हमें सेंसेस भी दी है तो उसका कोई पर्पस है, वो इसलिए नहीं दी कि उसको हम छोड़ दे। लेकिन सेंसेस पे संयम से काम करेंगे तो अपनी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो मुझे संयम से क्यों काम करना है, तो उसमें भी आप देखो नेचर ने भी एक इंडिकेटर दिया हुआ है, देखो उसमें ज्यादा कर दो आप। आपको कोई टेस्ट अच्छा लगता है, कोई नॉर्मली कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, जैसे कोई म्यूजिक, उस म्यूजिक को आप एक्सट्रीम, जैसे आपको आधा घंटा सुनना अच्छा लगता है, आपको 4 घंटे सुन लो, क्या होता है? हेडेक होगा। कोई चीज अच्छी लगती है, टेस्ट में अच्छी लगती है, आप खाना शुरू करो और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ,
वही पेन का रीजन बनेगा। जो आपका सुख का रीजन है वही आपके पेन का रीजन बन जाता है, वही पेनफुल हो जाता है। मतलब वहां पे भी नेचर ने आपको इंडिकेशन दिया हुआ है कि भाई अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का त्याग करो, ऐसा बोला गया है। लेकिन क्यों करना है वो जब मेरे समझ में वाई क्लियर हो जाएगा तो वो अपने आप होगा, उसके लिए फोर्स नहीं लगाना है। मुझे संयम से रहना है, वो बोलने से नहीं समझ में आएगा, मेरे समझने से समझ में आएगा। हाँ, इससे मैं ज्यादा करूं तो क्या होता है, कम करता हूं तो क्या होता है। तो मेरे शरीर को चलाए रखना है तो सेंसिस तो चाहिए ही चाहिए। सेंसिस नहीं होगी, जैसे एक स्किन पे कुछ लगता है और समझ में नहीं आता है, 10 दिन के बाद समझ में आता है, तो कोई आपको मार के भी जाएगा तो 10 दिन तक लहू निकलता रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, तो फिर बॉडी को कैसे आप बचा के रखोगे। तो जो दिया हुआ है सब सही जगह पे दिया हुआ है, सिर्फ उसको जानना है, गलत कुछ नहीं है। जब भी नॉर्मली हमारी बातें होती है तो सब लोग ऐसे मीनिंग निकाल देते हैं, मैं भी पैसे पहले निकालता था कि ये सब बकवास है, इंद्रिया नहीं चाहिए, इंद्रियों से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो हठ योग में वो सब में क्या है, तो हठ योग में यही करते हैं कि इंद्रिया है उस पर फोर्स करके उसको दमन कर दो, दमन वाली प्रोसेस है। 5 सेंसिस पे दमन करो, फोर्सफुली उसको बंद करो, है ना। हठ योग में वो सब वही किया जाता है। तो वैसे उसके बाद आपका ध्यान परम शांति की तरफ जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है, उसमें गलत भी नहीं। देखो ग्रेटिट्यूड है, हर चीज के लिए हमारी कृतज्ञता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्रोसेस थी ना सीखने के लिए, वो भी गलत नहीं था। किसी ने ट्राई किया, कोई सम है, अलग अलग तरीके से ट्राई किया, सही तरीका होगा वो अपनाएगा, मानव अपनाएगा, गलत होगा वो उसको रिजेक्ट करता जाएगा। तो यहां पे इससे जो सुख मिलता है उसकी लिमिट शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे ज्यादा शायद मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। उसके बाद जो सुख आता है वो लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है वो संबंध से आता है, रिलेशन से आता है। थ्रू रिलेशन, जैसे मां बेटे का प्यार। देखो मां बेटा पास में नहीं रहते, बहुत दूर रहते, फिर भी वो प्यार रहेगा ही, वो सुख की अनुभूति कराता है ना। हस्बैंड वाइफ का तो अभी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन माँ बाप का तो रहता ही है। लेकिन उसमें भी अभी तो प्रॉब्लम है, उसमें भी आप देखो बच्चे पे इतनी अपेक्षाएं डाल दी जाती है तो प्यार साइड में रह जाता है, अपेक्षा पहले आ जाती है, फिर वो भी बोर, पेरेंट्स भी बोर। तो संबंध से जो मुझे तृप्ति मिलती है, जो सुख मिलता है, वो लॉन्ग टर्म सुख है, उसकी अवधि लॉन्ग टर्म है। और उसके बाद जो है वो परमानेंट है, वो परमानेंट है, वो समझ से आता है, अवेयरनेस बोलते हैं उसको। वो निरंतर, परमानेंट, वो परमानेंट है। तो ये 3 चीजों को अच्छे से समझते हैं हम। तो देखो शुरुआत जब भी होती है तब छोटे से होती है ना। जैसे मैं सुख के लिए मेरा प्रयत्न कंटिन्यूअस है, ऐसे के लिए बोलते हैं ना उसको। सुख के लिए मैं सुख मेरी अभिलाषा है, अभिलाषा बोल सकते हैं ना। जैसे सुख हर एक मानव की अभिलाषा है, तो सुख की लिए उसको मालूम कैसे होगा? तो पहले मोमेंट्री से मालूम होगा उसको। मोमेंट्री से समझ में आएगा कि यार हाँ सुख है, सुख जैसी कोई चीज है। तो सेंसिस के थ्रू मुझे वो पता चलता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं हर एक चीज से, हर एक सेंसिस से मैं सुख को पाना चाहता हूं। तो मेरी अल्टीमेट जो फाइंडिंग है वो सुख ही है, हैप्पीनेस ही है। फिर वो मैं किसी भी तरीके से पाऊं। तो इतना पकड़ में आ गया। तो उसमें एक सूत्र है,
मानव केवल और केवल अपने सुख के लिए ही प्रयास करता है। वापस, मानव केवल और केवल अपने सुख के लिए ही प्रयास करता है। इसका आउटकम क्या आएगा इस सेंटेंस का? इसका आउटकम क्या आएगा? जब मैं मेरी लाइफ में, आप आंखें बंद करके देखो एक बार, कभी आपने दूसरों के लिए कुछ किया? देखो, आंखें बंद करके एक बार सोचो, मैंने लाइफ में कभी दूसरों के लिए कुछ किया? यस और नो? तो यस वाले हैंड रेस करें। ओके, हाँ ओके। हमने दूसरों के लिए कुछ किया तो उसमें हैंड रेस कीजिए प्लीज। देखो, शेयरिंग होगा तो भी मजा आएगा ना। हमने दूसरों के लिए कुछ किया। ओके, मैम से शुरू करते हैं। मैम को दो आप। हाँ, किसी के लिए भी। आज जो पोजीशन पे मैं हूँ सर, मेरे लिए जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनके हित के लिए या उनकी भविष्य बनाने के लिए या उनका अच्छा करियर बनाने के लिए, पहले तो मेरी ड्यूटी है ही, लेकिन ड्यूटी को ड्यूटी की तरह न निभा के कुछ उनके लिए कुछ भी मतलब डिसीजन लेना पड़े या जो भी हो, उनके हित के लिए अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे वो संतोष है कि हाँ भाई, मैंने उनके लिए कुछ किया। कुछ बोल के दिया उन्होंने बीच में मैम ने, तो मुझे संतोष है। संतोष है, मतलब मैंने दूसरों के लिए कुछ प्रयत्न किया। वापस इस चीज को वापस देखो। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको जब समझ लोगे ना तो हल्के हो जाओगे। मेरे में वो भार है ना, वो वही है। क्या मैंने दूसरों के लिए कुछ किया, तो वो भार हटा दो। सर, इसमें मेरा कहना ये है, संतोष मुझे था, मेरे संतोष के लिए मैंने नहीं किया सर, लेकिन वो करने से मुझे संतोष तो मत हुआ। करो। लेकिन सर, आई एम हियर टू डू दैट। अच्छा लगता है मुझे करना बच्चों मत करो तो फिर। नहीं सर, बट आई एम अगर मुझे अच्छा भी ना लगे, सपोज अपने लिए मैं नहीं सोचूं, लेकिन बच्चों के लिए आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ जो पोजीशन पर, तो मुझे वो करना ही है। मत करो। राइट? देखो, सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो। पोजीशन ही मैं स्वीकार ना करूं सर। कोई बात नहीं, देखो बात पकड़ में आ रही है ना, कोई बात। ओके, और कोई कौन था? यस। सर, जो बात आप बोलना चाहते हैं वो मेरा दिल की बात है। हम हर कोई किसी न सबके दिल की बात है, सबके लिए ही है कि करते हैं, हम सोचते हैं दूसरे के लिए करते हैं, बट करते दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होते हैं। नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो हमें संतोष मैं क्या देता बोल है। रहा हूँ, अभी सम्मत होना बहुत इजी काम है। सम्मत मत हो आप। सम्मत होना इजी काम है जी। असम्मत होने के लिए ट्राई कीजिए, जैसे मैम ने किया ना अभी, वैसा ट्राई कीजिए आप। सम्मत होना इजी काम है, सम्मत नहीं हो जाए वो तो मालूम ही है, वो तो मुझे भी मालूम है, सबको मालूम। आप डिसएग्री होना ट्राई करिए। क्या मानव केवल और केवल अपने सुख के लिए ही प्रयास करता है, उसको उसके साथ डिसएग्री हो आप। नहीं, डिसएग्री नहीं हूँ। नहीं तो ये एग्री हूँ कि है, लेकिन ये भी है, आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए करते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको वो समझ नहीं है। नहीं, ठीक है। अब दूसरा कोई डिसएग्री वाले बोलो, डिसएग्री वाले। देखो, ये सूत्र है, इस सूत्र को हमें जांचना है।
मानना नहीं है, मानो मत, किसी भी चीज को मानो मत। बताओ, डिसएग्री। हाँ सर, आप बोल रहे हैं कि जो हम करते हैं अपने लिए करते हैं, जैसे कि आपने अभी बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने बोला कि सबको यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता है, जीवन विद्या किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर भी सब लोग बैठते हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अपने लिए बैठते हैं। सही है, अच्छा है, अच्छा है। देखो उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मत बैठो। नहीं, वो क्या है ना सर, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें जो सर ने बोला है कि 1/4 लगेगी आपको। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, बढ़िया। तो फिर क्या करें कि नहीं बैठना है, फिर भी बैठना पड़ता है ना। हाँ ऐसा तो देखो, वो तो जो, जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने बोला कि सबको ऐसा लगता है कि नहीं बैठना है। हाँ ऐसा। सही, नहीं मत आप भी बोलो, डोंट वरी यार, मेरे साइड से ऐसा रहेगा ही नहीं, आप टेंशन छोड़ दो। देखो मेरा नजरिया ऐसा, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप एक बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो। देखो अब देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। मुझे नहीं बैठना है लेकिन बैठना पड़ता है, तो मैं अपने सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा सामने आंसर है मत करो। तो आप क्या बोलोगे, 1/4 लगती है। हाँ। तो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम तो अपना काम करेगी। हाँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कोई खराब काम कर लूं, कोई खराब काम मैं करूं, अब वो खराब काम है तो मुझे बाय डिफॉल्ट, मैंने नियम का विरोध किया, प्रकृति के नियम का विरोध किया, तो मैं दुखी होने वाला हूं, मैं दुखी होता हूं ना। हाँ। जैसे आपको लगता है कि किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए मारना पड़ता है, तो आपने मारा, लेकिन आपने ऐसे सोचा कि मैंने अच्छे के लिए मारा, ठीक है, लेकिन आपने काम तो गलत किया ना। तो देखो, आप वो करने के बाद घर पे सोच सकते हो क्या कि दिमाग में सोच आती है कि नहीं यार मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया, होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो दो दुख तो आएगा ही, तो आप सुख को मैक्सिमाइज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि 1/4 से बेटर है, आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ। तो आपने ऐसे मान लिया कि मैं दुख को मिनिमाइज करूं ना, वो भी मेरा सुख ही है ना। हाँ, सुख की अनुभूति नहीं होती है सर इससे। नहीं उन्हें लगता नहीं है मैम, लेकिन फिर भी आप देखो उसके बाइफर्गेशन मेरे एज अ ह्यूमन मेरे अंदर क्या डेवलप होते हैं। जैसे मैं भी ऐसा ही बंदा था कि मैं ऐसा मानता था, सोटी वागे चम चम विद्या वे दम दम, मैंने बहुत बच्चों को मारा है समझो। तो जब भी मारा है तब मेरा ऐसा ही मानना था कि मैं सही कर रहा हूं। जैसे आज कोई डॉन होगा, वो किसी का खून करेगा तो उसको तो लगेगा मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं घर पे जाके आराम से मैं नहीं रह पाता था। मुझे दिमाग में ऐसा रहता है तक मैंने गलत किया। ऐसा भी कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स बोल के जाते कि आप मेरे बच्चे को मारो, और मारने के बाद भी मुझे तो बुरा ही लगता था, लेकिन मैं मारता था क्यों? क्योंकि एक मान्यता ऐसी थी कि मारेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी ग्रो हुए तो वैसे ही माहौल में ग्रो हुए, तो हमारा ग्रोन अप ऐसा हुआ, तो हमने वो चीज मान मान के चलाई। लेकिन हर बार वो सुख नहीं देता था, किसी भी बार नहीं दिया उसने। बताओ ना, कभी मार के मुझे खुशी नहीं हुई आज तक, कभी खुशी नहीं। आपको कभी हुई है क्या? मैं उसको सही मान के कर रहा हूं, वो मेरी गलती है। क्यों? मेरी समझ कच्ची है, मेरी समझ नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरी समझ पक्की हो जाएगी, मतलब मेरा स्वयं पे विश्वास नहीं है। जिस दिन मेरा स्वयं पे विश्वास आ गया ना, उस दिन तो मैं किसी को हाथ नहीं टच करने वाला। लेकिन मेरा खुद पे अभी तक भरोसा नहीं है। मुझे लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा मुझे अंदर जब जब फील होता है तब मैं एग्रेसिव होता हूं। यानी मेरी अक्षमता होती है, सामने वाले की नहीं होती है। ऑब्जर्व करो आप, होता है ना। तो आंसर मिला नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। वापस लेना है क्या? अभी 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 पकड़ो उस चीज को। देखो बात तो यही है ना, ध्यान लेके जाना है मैं क्या कर रहा हूं। यहां नहीं बैठना है और मैं बैठ रहा हूं, तो मत बैठो कल से। जो होगा वो होगा, वो तो होगा ना। लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, इससे ज्यादा ये पसंद आ गया तो आपने आपके दुख को मिनिमाइज किया, बस उतना, और कुछ नहीं है।
वो सुखी है, मैं दुख को मिनिमाइज करूं वो क्या है? मेरा दुख को मिनिमाइज करना क्या है? कौन सी दिशा में मेरा ट्राई है? देखो देखो, एक चीज और ध्यान दे दो, मैंने पूरी लाइफ ट्राई की है, अभी तक मैं सुखी नहीं हुआ तो ये 1/4 वाली क्या बात है? मैं मेरे परिवार में भी सुखी नहीं हूं, मेरे परिवार के संबंध भी मेरे सही नहीं है, तो मतलब मैं तो अभी भी दुखी हूं, मतलब मेरे तरीके ही गलत है, तो वो तो होने वाला है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो बाय नेचुरल रूल्स है ना। સર તમે કીધું કે ડોન હોય છે એ બીજાને મારે છે તો ખુદને મતલબ સુખી મહેસૂસ કરે છે, તો જે ભૂવા હોય મતલબ જે એ બીજાને તો મદદ કરે જ છે, પણ એના અંદર એને સુખ મળતું હશે કે નહીં? જે રીતે તમે કીધું કે માનવ ખુદના સુખ માટે જ હંમેશા કામ કરે છે. अभी ऐसा होगा, मैं मेरी बात करूंगा तो सही पकड़ में आएगा। ओके. अब भूए के दिमाग में क्या है मुझे कैसे मालूम आएगा? आपको भी कैसे मालूम होगा? मतलब प्रोसेस हो ही सके खरी, मतलब कि એને સુખ नहीं, મળતું હશે. वो फिर हमारी कल्पना हो जाएगी, वो तो कल्पना हो जाएगी, वो कल्पना हो जाएगी। हमें खुद की बात करनी है, जैसे अभी मैम ने बोला वो खुद की बात की, अभी मैम ने बोला वो खुद की बात की, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। दूसरों की बातों को, कहानियों को जस्टिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम खुद की बात करें, मैं जो कर रहा हूँ वो सुख के लिए कर रहा हूँ, बस उतना देख लो। मैं डांस क्लास अभी चलाना चाहता हूँ, सुख के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे वो नहीं करना है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, नीड है तो भी उससे तो मुझे क्या पाना है? तो मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, दोनों में दुख था, तो मैंने ऐसा ऑप्शन चूज किया जिसमें दुख थोड़ा कम हो। तो दुख का कम होना भी मेरी सुख की तरफ का ही प्रयास है। आपका ध्यान जाएगा। अब गया ध्यान? आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ सही है। सर इट इज़ माई परसेप्शन, पर्सनली जो मैं रियलाइज किया हूँ, ये जो सुख का जो परिभाषा है ना, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे ही ठीक से अभी तक मिला नहीं है। तो ये जो इंद्रिय सुख है, मुझे लगता है ये तृप्ति होता है, मतलब ये सुख नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन, इट्स अ टेम्पोररी तृप्ति। एक संबंध जो होता है ना, दैट इज कंडीशनल, वी डिपेंड कि हमको थोड़ा थैंक्स मिल जाए, सम ग्रेटिट्यूड, दूसरा हमको थोड़ा रेस्पेक्ट करे, थोड़ा थैंकफुल हो जाए, तो उससे हमको सुख आता है। बट एक्चुअल जो मुझे लगता है सुख, वो हर एक क्रियाक्रम से परे होते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर अवेयर, हमको सिर्फ एक जागृत होकर रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दूसरे का कोई मतलब ये नहीं पहुंच रहा है, हानि नहीं पहुंच रहा है, हम सिर्फ करे जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपेक्षा नहीं होता है कि उसके लिए हमको कुछ थैंक्स मिले या उसका रिजल्ट क्या हो, बट आई एम डूइंग विथ सम राइट कॉज, और मैं कनेक्टेड हूँ और मैं अपने मन के अंदर ही वो स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूँ, येस व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, बीइंग कनेक्टेड, वो परमानेंट होता है। तो मुझे लगता है वो समझ से जो सुख होता है और वो है, बाकी सुख नहीं है, बाकी सब कुछ कंडीशनल होता है, एक सिंपल सेटिस्फेक्शन होता है, वही मुझे लगता है। नहीं, तीनों कंडीशन में आप कंडीशनल भी कर सकते हो, अनकंडीशनल भी कर सकते हो। इंद्रिय सुख भी अनकंडीशनल आप भोग सकते हो, संबंध भी अनकंडीशनल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं बोला सर, पहले तो कंडीशनली होता है, हाँ, लेकिन हाँ, जो एक्चुअल सुख है वो अनकंडीशनल होता है। मतलब हम बिना कुछ अपेक्षा किए हुए, बिना कुछ सोचे, हमको ये करना है जो ठीक है और वो हम किए विदाउट एनी कंडीशन। वही मैं जस्ट बोलने का कोशिश किया। हाँ सही है। इसीलिए आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या कुछ याद आया आपको? प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है? સર એ મને એટલે યાદ આવ્યું હતું કે તમે એ દિવસે કીધું હતું કે માણસને સ્વતંત્ર રહેવું ગમે છે, તો પ્યારમાં તો આપણે ગુલામ થવું ગમે એવું, તો મતલબ ગુલામ થઈને પણ આપણે સુખી થઈ શકીએ, તો બધા જો પ્રેમથી જ રહેતા હોય તો પછી સ્વતંત્ર શું કામ રહેવું? એટલે મોસ્ટ ઓફ પ્રેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધી જગ્યા મારા ખ્યાલથી એવું। જો હું એને નામ સ્વતંત્રતા આપું, સુખ આપું, સ્વીકૃતિ આપું, કે પછી આપણા આધ્યાત્મમાં બધી વાતો કરી છે ને,
સાક્ષી ભાવ, જે નામને શબ્દો છે ને, શબ્દોની એક લિમિટ આવશે. મારો અનુભવ જે છે ને એ જ મેન છે. શબ્દોની એક ક્ષમતા આવશે જ. શબ્દોને તમે પછી એને ડેફિનેશન કરવા જશો તો ત્યાં ક્યાંક અટકી જશે. એટલે એને પ્રેમ કહો, ઈશ્વર કહો, વોટ એવર કહો, હું છું જેવો અને હું જેવો છું એવો બનું છું ત્યારે ખુશ રહું છું. બસ આટલી વાત છે. હું જેવો છું એવો બતાવવા જાઉં છું ત્યાં હું દુઃખી થઈ જાઉં છું. सर, ये प्यार और प्रेम को जो बारे में बोल रहे, दो मैंने पीएचडी नहीं किया हूँ प्यार और प्रेम में, लेकिन मुझे एक जगह से अच्छा ये मिला था कि प्यार जो है वो कंडीशनल होता है और प्रेम जो होता है ना उसका दूसरा परिभाषा होता है सैक्रिफाइस. प्रेम सैक्रिफाइस से आता है. प्रेम कंडीशनल नहीं होता है. प्रेम कभी चाहता नहीं है. प्रेम इज सैक्रिफाइस. मैं इससे प्रेम करता हूँ, मतलब इसका कोई भी इसमें कभी भी इसका अच्छे के लिए सोचूंगा, चाहे वो मुझे ही सैक्रिफाइस कर देना पड़े. वो होता है प्रेम, जिसको हम हमारे इंडियन फिलोसॉफी में बोलते हैं पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति. भगवान आपके लिए, आपको पहले मैं भोग बना के दूंगा और वो जो है भोग आप ग्रहण करेंगे, हम प्रसाद लेंगे. आपको जो अच्छा, पूर्ण समर्पण, मैं जी रहा हूँ आपके लिए, तो पूर्ण समर्पण से ही प्रेम आता है. वो प्रेम अगर हस्बैंड वाइफ में भी बन जाता है तो वो उस लेवल पे होता है, उसमें कोई मतलब कंडीशन नहीं रहता है. तुम मेरे लिए इतना करो तो मैं तो अपेक्षा नहीं रहता है, तो उसको प्रेम बोलते हैं. और प्रेम हो जाता है कंडीशनल. तो ठीक है, मैंने बोला ना, प्रेम, प्यार, प्यार. हाँ, शब्दों पे मत जाइए, क्योंकि कंडीशन रखना नहीं रखना वो डिसाइड कौन करेगा? वो तो हमारे मन के अंदर से ही हो जाता है. तो मुझे एक फॉल्स decide- ईगो, देयर वी आर. तो किसी में भी कंडीशन रखूं ना रखूं वो मेरी मर्जी ना, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो प्यार से अगर इधर आ जाते तो वो प्रेम बन जाते हैं. हम ही देखो, प्यार करते हैं, हम ही प्रेम करते हैं. समर्पण भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि यार मुझे समर्पण करना पड़ता है, मुझे ही सब सहन करना पड़ता है. समर्पण सहन जैसा भी बन जाता है कई बार. मैं खुश होकर समर्पण करता हूँ, मतलब मेरी स्वीकृति ऐसी है कि जहाँ मुझे समर्पण फील ही नहीं होता, नाम कुछ भी दे दो. हाँ, वही मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि मैंने समर्पण कर लिया है. हो जाता है. उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं होती. एब्सोल्युटली. मैंने दूसरे के लिए कुछ किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं होती, मैं करते रहता हूँ, बस Absolutely. होता रहता है. सर, ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, वो कहीं पे लिख के नहीं हुए कि आज से मैं समर्पित होता हूँ. वो हो जाता है, लेकिन हम बाहर से हमको पहचान आता है कि ये समर्पण हो गया है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेम. हाँ, सही है. ठीक. तो बात मेरी पकड़ में क्या आ रही है भाई? अभी कोई डिसएग्री होने वाला? डिसएग्री, नॉट अग्री. मानव केवल और केवल अपने सुख के लिए प्रयास करता है. असम्मत होकर सर, ट्राई करें. एक बात मैम की, जो मैम ने कहा अभी कि सुख नहीं मिल रहा है बैठने से, आपने कहा दुख को मिनिमाइज कर रहे हैं. आपको लगता है कि 1/4 से बेटर है कि यहाँ बैठ जाओ तो बेटर है, इसलिए बैठे हैं. तो उससे मुझे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम जीवन विद्या में आते क्यों हैं? क्यों बुलाते हैं आप लोग हमें? आप हमें क्यों बुलाते हैं? 11 बजे सबको आना है, बैठना है, क्यों? सुख देने के लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है, जिसको लेना है वो ले लेगा. वो तो मैं कैसे दे सकता नहीं हूँ? सर, आपकी जो आपने लिख रखा है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. इंद्रिय अगर हम जाए, हम सुनेंगे, हम कुछ बोलेंगे, कुछ देखेंगे. देखो, इससे मैं एक बात बताता हूँ. हम यहाँ सिर्फ एक मानव को पढ़ रहे हैं, ठीक है? मानव क्या होता है? क्योंकि हमने अब तक स्किल पढ़ी, टीचर बन गए, आज भी क्लास में जाके हम स्किल वाले इंसान ही है, मानव नहीं है, और पढ़ा रहे मानव को. तो जो नियम है वो नियम को मैं मानू ना मानू, जानू ना जानू, समझू ना समझू, नियम अपना काम करता ही है. मतलब यहाँ बैठ के आप किसी को लगता है मैं दुखी हूँ, तो कोई ऐसे भी बंदे हैं जिनको लगता है खुश हूँ. तो खुश होना, दुखी होना वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है. वो आपकी प्री कंडीशन है जो आपको दुखी करती है. मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कौन हूँ दुखी करने वाला? नहीं मैं नहीं. सर, मतलब आप समझो, मेरी बात समझो. मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा आप फील करते हो वैसा सब फील करते हैं.
तो देखने जाओगे तो सब नहीं करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। मैं तो यहाँ से यहाँ कूद के आती हूँ। एक कूदी में घर, एक कूदी में स्कूल। तो मुझे 11 बजे और यहाँ आके बैठ के बातें करना, सुनना अच्छा लगता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैं अपने लिए नहीं सिर्फ बात किसी नहीं के कर लिए रही भी हूँ। बोलो, देखो। लेकिन मुझे ये लगा ये क्वेश्चन सुन के, और ये सही है। बहुत लोगों का है कि ऑनेस्टली ये सैटरडे का टाइम मुझे सही नहीं लगता है। पूरा सुबह का भी टाइम बेकार जाता है, शाम का भी देखो, टाइम बेकार जाता है। मेरा स्वार्थ बता दूं मैं आपको, मेरा स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ के बिना तो कोई काम नहीं होता है ना। ओके, मेरा स्वार्थ इतना है कि मैं टीचर हूँ। अब जिसके पास जो होगा वो बांटेगा ही। अब आप किसके साथ डील कर रहे हो? बच्चों के साथ। अब बच्चे के आगे की इंसान नहीं खड़ा, एक मशीन खड़ा है। अब मशीन करेगा क्या? और मैं दुखी हूँ, मैं मेरे घर से दुखी हूँ, मैं मेरे प्रॉब्लम्स लेके आ रही हूँ, मैं घर पे मेरा कोई नहीं सुनता है, मेरी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इस आइडेंटिटी के लिए स्कूल में आ रही हूँ। तो आप अपनी फाइट कर रहे हो, और अपनी फाइट कर रहे हो, आप दुखी हो, तो आपका दुख मेहरबानी करके सामने जो बेचारे बच्चे हैं उन पे मत डालो। बस मेरा इतना सा स्वार्थ है। मैं बोल रहा हूँ सब सुखी हो जाओ तो सुख बांटोगे, दुखी रहोगे तो दुख बांटोगे। तो स्वार्थ मेरा इतना सा है कि, और दूसरी बात, मुझे बात करने से अच्छा लगता है, तो मैं तो अपने सुख के लिए आता हूँ। हाँ, मेरे पावर में आता है तब तक मैं आपको बोलता रहता हूँ। और आपको आना भी है, आप डिसाइड कर सकते हो मुझे कम दुख चाहिए, ज़्यादा दुख चाहिए, वो आप फ्री हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, गारंटेड एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन लगेगा कि यार अच्छा हुआ ये सब हो रहा था। सर मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही देखें, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इंद्रिय काम कर रहा है किस लिए? सुख मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ आ रहे, आपस में संबंध भी बन रहा है, जो आपके साथ हमारा, या फिर जीवन विद्या के टीम के साथ हमारी एंजल टीम का, तो वो संबंध भी बन रहा है, और उसके साथ साथ हमारी समझ भी बढ़ रहा है, यानी हम सुखी होने के ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें ये लग रहा है कि यहाँ बैठना अगर मिनिमाइजिंग ऑफ दुख है, तो हम सुख लेने के लिए दुख वाला क्यों ले? वो मैं वही बोल रहा हूँ मैम कि सुख दुख मेरी कंडीशन है, आप पकड़ो, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, वही तो पकड़ रहे हैं हम। मेरा दुखी होना मेरी कोई कंडीशन है, वो डिस्टर्ब मुझे कर रही है, सामने वाला तो मुझे कुछ नहीं कर रहा है। बस सामने वाला ही बोल रहा है ना सर, अब नहीं आओगे, अटेंडेंस सीट लेके बैठेंगे, वो तो अपना काम लगेगा। वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। हर एक इंसान अपना काम कर रहा है। काम करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वो आपकी कंडीशन है, आप उसको जांचो, उसमें सामने वाला क्या करेगा। तो मेरी कोई बात से आपकी आस्था जुड़ सकती है, मेरी कोई बात से आपके कोई ऐसे कंडीशंस जुड़ सकते हैं, मेरी कोई बात से आपका घर का कोई माहौल याद आ सकता है, और आपके कंडीशन की वजह से आप दुखी हो सकते हो। लेकिन हर बंदा ऐसा होगा वो पॉसिबल नहीं है। सर हम दुखी नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए लगता है कि हमें जीवन विद्या नहीं भरनी है, क्योंकि घर पे हस्बैंड ससुर सब लोग भूखे बैठे हैं, यहाँ पे बच्चा भी बैठा है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि नहीं, इससे तो बेटर यही है कि घर जाके खाना बनाओ और सबको खिलाओ, क्योंकि घर पे जाते हैं तो सब लोग सो गए होते हैं 1 बजे तक, इसीलिए ऐसा लगता है। बाकी ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ बैठ के दुख मिलता है। हाँ, वो तो देखो, एक तो चीज कैसी होती है, नॉर्मली ऐसा लाइफ में होता ही है कि कुछ पाने के लिए मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ती है, कहीं पे प्रायोरिटी नहीं भी दे पा रहा हूँ, वो मैं देखो हर एक चीज जैसे जैसे मान लो अभी वो दुखी हो रहे हैं, ठीक है, अब एक घर पे कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई बीमार है, तो कोई खाना पीना सब भूल जाते, मैनेज कर लेते हैं। कोई प्रसंग आ गया, मुझे बाहर जाना, मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन इसमें मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वो दरिद्रता है, मेरी गरीबी है कि कहाँ अच्छा मिल रहा है मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा है। जैसे आपको एक जगह पे सोना मिल रहा है, एक जगह पे चांदी मिल रही है, एक जगह पे लोखंड मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि लोखंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो मेरी ना समझी है ना, उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। अब इतनी वैल्यूएबल चीज़ जो मुझे लग रही है कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा, तो इतना तो आप समझ सकते होगे ना, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसको बांट रहा हूँ, और वो होते होते मेरी ना समझ वो ऐसी है, हाँ इससे मेरा टाइम बिगड़ रहा है, तो दैट इज योर कंडीशन, नॉट माई कंडीशन यार, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके।
जैसे देखो आप इतना सोचते हो ना, इतना भी सोच लो, जिस दिन मैं जैसे कल कुछ हुआ और मैं इस दुनिया में नहीं हूं, तो कौन खाना खाने के लिए देगा? होगा, एक्सीडेंट तो हर जगह पे हो सकता है ना। जैसे मैं नहीं हूं आज, तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, वो मैं ही चला रहा हूं, ये मेरा भ्रम होता है। शायद ऐसा हो कि मैं ना हो तब वो अच्छा चले ऐसा भी हो सकता है ना। कई बार हमारे भ्रम में ऐसा होता है कि मेरे परिवार को मैं ही चला रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे ना होने से वो अच्छा चलता है। तो चीजों को अच्छे से समझने के लिए ट्राई कीजिए, तो कई चीजें समझ में आएगी। ये मेरा भ्रम है, मेरे से सब नहीं चल रहा है, अपने आप वो चल जाता है। ठीक है, देखो अभी चेतना बेन आए थे ना, चेतना बेन ने एक अच्छा शेयरिंग किया था। आप तो 1 घंटा बैठते हो ना, उन्होंने 1 साल दिया, 2 साल, और कैसे जाते थे, महीने महीने 2-2 महीने के लिए जाते थे। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि सर एक बहुत बढ़िया चीज बन गई कि जब मैं घर पे रहता था तब मेरी जो लड़की है वो डिपेंडेंट थी, पानी का ग्लास भी मुझे देना पड़ता था। अब जैसे मैंने ठान लिया मुझे करना ही है, जो हो वो पीछे हो जाने दो, तो अभी वो सब संभाल लेती है। तो देखा, मेरा ध्यान नहीं जा रहा है कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके पीछे क्या अच्छा हो रहा है, वो मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा ध्यान गया, उनका ध्यान गया। हाँ, मेरे ये टाइम देने से 2 काम हो गए। मेरी बच्ची भी आज MSc केमिस्ट्री करके वो जीवन विद्या को केमिस्ट्री के साथ, यानी कि केमिस्ट्री में ऐसा क्या किया जाए जो बोलते हैं ना, उसमें आवर्तनशील हो, मतलब ऐसी चीजें बनाओ जो वेस्ट ना हो, उसका वापस रीयूज हो, तो रिसाइकल हो, वैसे लॉजिक से वो कुछ रिसर्च कर रही है। तो बेनिफिट कितना हो रहा है देखो। सेकेंड, उनके घर पे उनके एक रिलेटिव की लड़की भी रहती है, तो वो अपनी लड़की की तरह ही रहती है। तो उनको उसके जैसे हमारे घर पे अपने छोटे भाई का कोई लड़का भी 10 दिन आ जाता है ना, बोलता है कब आपके घर पे रह के पढ़ेगा, कितना बेयर कर सकते हो आप? होता है क्या हमसे? तो एक जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ जीवन विद्या से कांटेक्ट हुआ और वो गांव में रहते थे, तो उनकी एक लड़की उनके साथ रह के अभी पढ़ रही है 4-5 साल से, तो उनको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मैं कुछ ज्यादा कर रही हूं किसी के लिए। देखो एक चीज होती है, सोच आती है हमारे में, और सोच ही सबसे बड़ी कमाई होती है। ये जो है ना, जिसको हम वस्तुएं बोलते हैं ना, जो सैलरी बैलरी, वो कोई कमाई नहीं है। कितना भी मैं पालू फिर भी दुखी हूं। क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं मेरे पास, सही तरीके की सोच ही नहीं है, तो क्या होगा? तो अभी इस सेंटेंस को वापस एक बार देखो। कई बार जिसकी पात्रता जैसी होगी वैसे वैसे वो कैप्चर होता रहेगा, और सबकी कैपेसिटी तो होती ही है, लेकिन पात्रता नहीं होती। तो पात्रता के लिए हम एफर्ट लगा सकते हैं, लगाना हो तो उसके लिए भी आप फ्री हो। यहां से जो बोला जाए वैसे जीना हो तो भी फ्री हो, नहीं जीना हो तो भी फ्री हो, अपने हिसाब से जीना हो। लेकिन नियम का काम करता है, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, नियम अपना काम करेगा ही करेगा। तो मुझे नियम के साथ चलना है, क्योंकि अभी दुख की व्याख्या है, नियम का विरोध इज इक्वल टू दुख। तो कौन सा नियम मैंने बनाया? वो नियम नहीं, प्रकृति का नियम। तो प्रकृति के नियम का विरोध करना ही मेरे दुख का कारण होता है। अब मेरा ध्यान जाना चाहिए, वहां पे नहीं जा रहा है तो वो देखना है मुझे। जैसा मेरा ध्यान गया समझ में आ जाएगा कि नहीं यार मुझे ये करना है, नहीं करना है। ठीक है, आज का टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। अभी धन्यवाद। एक एग्जांपल देना है सर, थोड़ा। हाँ देखते हैं ना पक्का। 2 मिनट लगेगा। अभी जो किसी के पर्सनल नहीं हो, ये सबके लिए। अभी मैम ने जो बताया कि आप हमें सुख बांट रहे हो, तो उस पर एक एग्जाम्पल है। अभी बच्चा है, बहुत प्यार है, वो रोता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुखार चढ़ा है काफ़ी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, और दवाई इतनी कड़वी है कि बच्चे को पिलाते हो तो बच्चे उससे दूर भागता है। तो फिर माँ को अच्छा नहीं लगता है, वो रोता है। तो एक बार दूसरी जगह बुखार भी उतारना है, तो उसकी जगह माँ खुद दवाई पी लेगी तो चलेगा? चाहे कड़वी जितनी भी हो उसको ही पिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो दवाई अंदर जाएगी तभी बुखार उतरेगा। तो ये दवाई थोड़ी सी कड़वी है, पी लो, बुखार उतारना है तो।
लेकिन कड़वी भी सबके लिए थोड़ी है, ये दवाई तो किसी के लिए बहुत मीठी भी है। ये भी है, नहीं जिसको अच्छी नहीं लगती। बहुत मीठी है, इसकी तरह मीठा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। ओके, धन्यवाद, મળીએ છીએ ફરીથી।